سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کی، کسی فعل کی نیت کرتا ہے تو جب تک اس فعل کو وہ کر نہ لے جب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، یا صرف اس وقت اس نیت کا جو اس نے فعل کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اس اچھی نیت کا ثواب ملتا ہے؟ یا یہ بھی سنا ہے کہ اگر آپ نیت کر لیں گے تو جب تک آپ یہ فعل نہیں کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے مدنی قافلے کی نیت کی تو جب تک آپ مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے آپ کا ثواب شروع ہو جائے گا، تو جب تک مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے جب تک ثواب ملتا رہے گا، یا صرف نیت کرنے کا ثواب ملے گا؟ نیت اگر پکی نیت ہے واقعی تو نیت کا ثواب ملے گا، اس عمل کا ثواب تو اس وقت ملے گا جب وہ عمل کرے گا، اور یہ نہیں کہ وہ نیت کا میٹر چلتا رہے گا جب تک عمل نہیں کرے گا، میٹر چلنے کا تو کہیں نہیں پڑا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مبین اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ خانپور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ مدنی مذاکرے میں سنا تھا کہ مٹی کے برتن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، علماء نے اس کو سنت نہیں کہا، اس طرح کوئی سوال تھا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو اس میں پوچھنے والی بات یہ ہے کہ سنت اور ثبوت میں کس طرح فرق کریں گے؟ آیا کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اس کو سنت نہیں کہہ سکتے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدھ بار کے عمل سے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک آدھ بار عمل سے وہ عمل سنت نہیں بن جاتا۔ تو مٹی کے برتن فتح رضویہ میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن بھی تھے، کاٹھ کے بھی تھے، کاٹھ لکڑی۔ تو اب یہ کہ مٹی کے برتن استعمال فرمائے یہ لکھا نہیں ہے فتح رضویہ شریف میں، میں نے نہیں پڑھا۔ اگر ایک آدھ بار استعمال فرمائے بھی ہوں تو بھی سنت کیسے کہیں؟ اب یہ کہ سرکار کے پاس تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب تھے سے یہ جملہ کیسے بن جائے کہ استعمال بھی کرتے تھے اور سنت ہے استعمال کرنا؟ اللہ بہتر جانے۔ یعنی سنت سے یہی مراد ہے کہ جو ایک آپ نے وقتاً فوقتاً بار بار جو عمل کیا ہو، یہ اصطلاحاً ویسے اگر لغتاً دیکھا جائے تو ثابت ہونا یہ بھی تو ایک طریقے میں آ جاتا ہے۔ ثابت ہونا اپنی جگہ پر ہے، نہیں جو سنت ہے وہ ثابت ہے، اور جو صرف ثابت ہے اس کو سنت کیسے کہیں؟
सुन्नत रसूल कहने के लिए यानी कि इत्मीनान होना ज़रूरी है ना। अकाबिरीन में से किसी ने लफ्ज़ सुन्नत मिट्टी के बर्तन के लिए लिखा हो ऐसा मेरी मालूमात में नहीं है। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मुझे बाएं कान में 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, बायां कान बिल्कुल बंद हो चुका है। इसमें एक फोड़ा या फिंसी निकली थी जिसकी वजह से कान में बड़ी शदीद तकलीफ़ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कम से कम 5 या 6 मरतबा इलाज भी करवा चुका हूँ, लेकिन उल्टा आराम आने के ज़्यादा कान ख़राब हुआ है और पैसे भी ज़ाया हुए, आराम भी नहीं मिला। बिला आखिर अपने शहर के एक दरबार शरीफ में हाज़री दी और बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़री दी। उनसे आराम यानी कि फ़र्क इतना बड़ा कि दर्द नहीं हुई आज तक, लेकिन अभी कान बिल्कुल बंद हो चुका है। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि इसका कोई इलाज तजवीज़ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमाए। सब्र हिम्मत से काम लीजिए। या सलामो 111 बार पढ़कर पानी पर दम करके इसको पी लिया करें, अपने पर भी दम कर दें। अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हिम्मत रखें। मकाम शुक्र है कि कान बंद हुआ, आँख बंद नहीं हुई, एक बंद हुआ, दोनों नहीं बंद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह खैर है। हिम्मत रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग बोलते हैं कि लेडीज़ की जो चुटिया होती है उसका जूड़ा बांधकर नमाज नहीं होती, तो इसके अंदर आप रहनुमाई फरमाएं और हज की दुआ फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जूड़ा बांध कर नमाज तो हो जाइए, कोई हर्ज नहीं, कराहत भी नहीं है जूड़ा बांधना। जूड़ा सब समझते, जूड़ा समझते ना, जो समझते उन्होंने जी कह दिया हो कि अक्सरियत हो सकता है ना समझती हो, उसने बोली नहीं। वैसे इस मौके पे पापा इजहार नहीं कर देना चाहिए कि अगर नहीं समझे तो नहीं समझे तो हमें कोई और समझाने की कोशिश करो। जूड़ा कौन कौन नहीं समझे? माशाअल्लाह, तो अक्सरियत समझ रही, इसका मतलब अब जूड़ा बांधने का रवाज भी कम हो गया है। अब तो औरतें खुले बाल रखती हैं, पोनी बनाती हैं, रबड़ वगैरह रिंग डाल के। ये औरतें जो बाल समेट कर पीछे से वो गट्ठा सा बांध लेती हैं, ये जूड़ा कहलाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये करना था कि 786 यानी ये 786 जो है इसको भी बिस्मिल्लाह कहा जाता है, इसकी कोई असल है या नहीं? ये बिस्मिल्लाह नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कायम मकाम भी नहीं है, ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत मिलेगी। ये इल्मुल आदाद, हिंदसों का इल्म, तो उस हिंदसों के इल्म के हिसाब से ये 786 का अदद निकाला गया। तो ये है मुतबर्रिक, अच्छा है, इसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसकी फ़ज़ाइल बेशुमार 786, अब इसके फ़ज़ाइल को तो ये इसमें शामिल तो नहीं कर सकते ना। पर ये पुराना, जब से हमने होश संभाला है 786 देखा है, चलता आ रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शफ़क़त अली बिन मोहम्मद ईसा, मरकज़ी जामिअतुल मदीना, दर्जा राबिया। बापा जान की बरगाह में सवाल ये है कि ये दुआ करना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की, पूरी उम्मत की बेहिसाब मग़फ़िरत हो। हालांकि अहादीस मुबारका में हमने मुख्तलिफ़ लोगों के हिसाब व किताब के वाक़यात भी सुने हैं, तो इसमें तत्बीक कैसे होगी? ये नहीं कह सकते जहन्नम में कोई भी मुसलमान ना जाए, ये नहीं कह सकते कि ये हदीसों में इसकी सराहत है। कुछ ना कुछ मुसलमान माज़अल्लाह जहन्नम में जाएंगे अपने गुनाहों के सबब। मग़फ़िरत के तो और भी यानी कई माना भी है ना। मग़फ़िरत के हतमी माना ये तो नहीं है कि अब ये जहन्नम से आज़ाद हो गया। दर्जात की बुलंदी भी है,
मगफिरत से मुराद या अब तक जो गुनाह हुए वो माफ़ हो जाए मगफिरत से, आइंदा गुनाह फिर वो काउंट। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिद करीम आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि बचपन से लेकर जवानी तक इंसान बहुत से गुनाह करता है, फिर अल्लाह पाक की तरफ से उसे तौबा की तौफीक नसीब होती है और वो तौबा कर लेता है। प्यारे बापा जान, लेकिन माजी के गुनाह, बुरे दोस्तों की सोहबत, मोहब्बत मजाजी और तरह तरह के गुनाह की यादें दिल में रह जाती हैं। तो बापा जान, मेरा सवाल है कि उन यादों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बापा जान, बहुत गम और दुख हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मीठे मदीने का गम नसीब फरमाए। अब ये कि अगर उन गुनाहों की बचपन का तो गुनाह काउंट नहीं होता, शुमार नहीं होता बचपन में, नहीं अगर नाबालिगियत है तो, वरना उर्फन तो वो जवान को भी बच्चा ही बोलते हैं। तब भी नाबालिगी में जो गुनाह हुए उनको भी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए गुनाहों को। तो गुनाह अगर वो नदामत के साथ याद हैं और इसका खौफ है कि पता नहीं माफ़ी मिली या नहीं मिली, खौफजदा रहता है, तो ये तो अच्छी अलामत है। तो इससे क्यों जान छुड़ाना चाहते हैं हम। वो अतबतुल गुलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार किसी मकान से गुजरे तो बेहोश हो गए गिरकर। लोगों ने बाद में पूछा कि क्या हुआ, बोला यहाँ से गुजरा तो ये इस मकान में बचपन में किया हुआ गुनाह मुझे याद आ गया, तो इसलिए मुझ पर यह कैफियत तारी हुई। तो गुनाह करके याद रखना चाहिए, नेकियां करके भूल जाना चाहिए। लेकिन नेकियां करके हमको याद रहता है, गुनाह करके भूल जाते हैं। हज किया, जिंदगी भर अपने हाथ से हाजी लिखना है, दूसरों के मुंह से हाजी सुनना है। वो गुनाह 1000 किए लेकिन उसको भुला दिया। वैसे तो बाज़ चीज़ें जहन पर नक्श हो जाती हैं, तो इसमें गुनाह भी नक्श हो जाते हैं, लेकिन नदामत कुछ नहीं है तो इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नदामत नसीब फरमाए। बाबा आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बारगाह में सवाल ये है कि अगर कोई कब्र बारिश की कसरत की वजह से खुल जाए और कब्र की मिट्टी उस मैयत पर गिर जाए, जिसकी वजह से मैयत का कफन तक नहीं दिखता हो, तो क्या उस कब्र पर मज़ीद मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाए या उसका क्या किया जाए? तख्ते रख कर फिर ऊपर जैसा कब्र बनाते बना ली जाए, अगर इतनी गिर गई है ये। मैयत नहीं दिख रहा है, कब्र की एक तरफ की दीवार गिर गई है मैयत के ऊपर, कच्ची मिट्टी थी, चुनाई नहीं किया हुआ था। शिगाफ वगैरह देखे, सिल रख कर तो इसको भर दे, पुर कर दे, इस तरह के वो मैयत पर सिल न रहे, अदर रहे, जी जी टिका कर, फिर उसमें मिट्टी वगैरह भर दें, तो बना दें इसको कब्र को, कब मैयत अंदर ही रहे। वैसे भी नज़र तो आ नहीं रही, तो वो खामा हटा कर देखना, इसकी तो इजाज़त नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आमिर सुन्नत की बारगाह में यह सवाल है कि इस्लामी बहनों को कब्रिस्तान जाना मना है। एक इस्लामी बहन है, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, उनके एक ही भाई थे। अब उनकी ख्वाब में वालदा आकर कहती हैं कि मेरी कब्र पर और तुम्हारे भाई की कब्र पर कोई आता नहीं है, तो तुम में से कोई एक बहन आए तो मुझे सुकून मिलेगा। तो ऐसा इस्लामी बहन का जाना कैसा? ख्वाब तो वैसे शरीयत में हुज्जत नहीं है, नहीं जाना चाहिए, हुक्म शरीयत पर अमल करना चाहिए। ख्वाब में वो माँ ही आती है या शैतान आता है, कैसे पता चले? माँ की शक्ल में। अल्लाह बेचारी की मग़फ़िरत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा बड़ा अच्छा मौका है ये, जामतुल मदीना के उस्ताद साहिबान, नाज़िम साहिबान तशरीफ़ फरमा है। आप
12 मदनी कामों के हवाले से कोई मदनी फूल अता फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैर। 12 मदनी काम की धूमधाम जामियातुल मदीना में मचा दीजिए, तो इंशाअल्लाह अखलाक की तरबियत भी होगी, मदनी इनामात भी इसमें आ गए, मदनी काफिले भी इसमें आ गए, मदनी मुज़ाकरे भी आ गए, क्या नहीं है इसमें। जज़ाकल्लाहु खैर। वैयाकुम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारे जानने वाले इस्लामी भाई हमें कहें कि आपको जब पापा की बारगाह में कुछ अर्ज़ करने का मौका मिले तो हमारा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा या हमारे लिए दुआ का अर्ज़ कीजिएगा पापा से, और हमें मौका मिला और हमने कोई अपनी बात की तो अब जो उन्होंने पैगाम दिया था या जो उनकी बात सलाम वगैरह हमारे पास अमानत थी, हमने वो अर्ज़ नहीं की, अपनी बात अर्ज़ की, तो इस हवाले से ये क्या। ज़ाहिर है कि अगर सलाम का हाँ बोला है आपने, मैं कह दूंगा तो पहुंचाना वाजिब हो जाता है ना। मौका मिला है लेकिन अपनी बात कह दी है। तो आप इतनी बातें की आपने, तो आप सलाम बोल देते और अपनी बात भी कर लेते तो काम तो चल जाता। सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो आपकी तरफ से हुआ ना सलाम। कहते हैं कि फुला ने आपको सलाम बोला या जिसने आपको सलाम बोला है उसका सलाम कबूल कर लो, ये भी हो सकता है। उन सब की तरफ से जिन्होंने सलाम पेश किया उनकी तरफ से आपकी बारगाह में सलाम पेश किया, अलैका वालेकुमुस्सलाम, और जिन इस्लाम भाइयों ने दुआओं के लिए अर्ज़ किया है, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि क्या किसी पर रोब डालने के लिए ज़ोर से बोलना या धमकी देना ज़रूरी या कोई और ज़रिया भी है? नीज़ रोब डालने के लिए तू ऐसा कर और जल्दी चल और इस तरह मतलब अल्फाज कहना बदतमीज़ी से, जैसे अपने आप को पूछना बदतमीज़ी करना कैसा, मतलब इसका कोई और तरीके का, जैसे आप इरशाद फरमा दे बाद जैसे अपने मनसब के मुताबिक रोब डालने के लिए इस तरह करते हैं, या फिर बच्चों को जैसे अदब सिखाने के लिए बच्चों पर बच्चे शरारत कर रहे हो, अब इसको अगर किसी ने माँ बाप ने डांट दिया या रोब डाल दिया तो क्या आप इस पर कलम लगाएंगे? या उस्ताद ने शागिर्द को डांटा, शागिर्द शरारत कर रहा है तो क्या हर्ज है इसमें? गाली ना दे, ऐसी बात ना करे कि उसके दिल में बुग्ज बैठ गए, हस्बे ज़रूरत तो रोब तो अब उस्ताद रोब नहीं रखेगा तो उस्ताद की टोपी उछाल देंगे। तलबा जो होते हैं कैसे होते हैं, तो रोब तो रखना भी चाहिए। उस्ताद अगर फ्री हो गया तो ये पढ़ नहीं सकेंगे, उससे रोब होगा तो ही पढ़ सकेंगे। तो जैसा मौका बेहिसाब मग़फ़िरत की माफ़। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम बिग़ैरि हिसाब, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाहिल गफ़्फ़ार से किसी ने उनकी तौबा का सबब पूछा तो फरमाया, मैं महकमा पुलिस में सिपाही था, गुनाहों का आदी और पक्का शराबी था। मेरी एक ही बच्ची थी, उससे मुझे बेहद प्यार था। वो 2 साल की उम्र में फौत हो गई। मैं गम से निढाल हो गया। इसी साल जब शबे बराअत आई, मैंने नमाज इशा तक ना पढ़ी, खूब शराब पी और नशे में ही मुझे नींद ने घेर लिया। मैं ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया। क्या देखता हूं कि महशर बरपा है, मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर जमा हो रहे हैं। इतने में मुझे अपने पीछे सरसराहट महसूस हुई। पीछे मुड़कर जो देखा तो एक कदावर सांप मुंह खोले मुझ पर हमला आवर होने वाला था। मैं घबराकर भाग खड़ा हुआ, सांप भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतने में एक नूरानी चेहरे वाले कमज़ोर बुजुर्ग पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उनसे मअस्सलाम फरियाद की। उन्होंने फरमाया, मैं बेहद कमज़ोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं फिर तेज़ी के साथ भागने लगा। सांप भी बराबर ताक़ुब में था। दौड़ता दौड़ता मैं एक टीले पर चढ़ गया। टीले के उस तरफ खौफनाक आग शोला जन थी और काफ़ी लोग उसमें जल रहे थे। मैं उसमें गिरने वाला ही था कि आवाज़ आई, पीछे हट जा, तू इस आग के लिए नहीं है। मैंने अपने आप को संभाला दिया और पलट कर दौड़ने लगा और सांप भी पीछे पीछे था। वही कमज़ोर बुज़ुर्ग मुझे फिर मिल गए और रोकर फरमाने लगे, अफसोस मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। वो देखिए सामने जो गोल पहाड़ है, वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं, वहाँ तशरीफ़ ले जाइए।
اگر آپ کی بھی وہاں کوئی امانت ہوئی تو انشاءاللہ رہائی کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ میں گول پہاڑ پر پہنچا، وہاں دریچے بنے ہوئے تھے، ان دریچوں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے، دروازے سونے کے تھے اور ان میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ فرشتے اعلان فرمانے لگے، پردے ہٹا دو، دروازے کھول دو، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت یہاں موجود ہو جو اسے سانپ سے بچا لے۔ دریچے کھل گئے اور بہت سارے مدنی منع چاند سے چہرے چمکاتے جھانکنے لگے۔ انہی میں میری فوت شدہ 2 سالہ مدنی منی بھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رو رو کر چلانے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہیں۔ پھر زوردار چھلانگ لگا کر وہ میرے پاس آ پہنچی اور اپنے الٹے ہاتھ سے میرا سیدھا ہاتھ تھام لیا۔ یہ دیکھ کر وہ قداور سانپ پلٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میری جان میں جان آئی۔ میری مدنی منی میری گود میں بیٹھ گئی۔ اس نے پارہ 27 سورۃ الحدید کی 16ویں آیت کا یہ حصہ تلاوت کیا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق یعنی قرآن کریم کے لیے جو اترا۔ اپنی مدنی منی سے یہ آیت کریمہ سن کر میں رو پڑا۔ میں نے پوچھا، بیٹی وہ قداور سانپ کیا بلا تھی؟ کہا وہ آپ کے برے اعمال تھے جن کو آپ بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ قداور سانپ نما بد اعمالیاں آپ کو جہنم میں پہنچانے کے در پہ ہیں۔ پوچھا وہ کمزور بزرگ کون تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھیں، کیونکہ آپ نیک عمل بہت کم کرتے ہیں لہذا وہ بے حد کمزور ہیں اور آپ کی برائیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر۔ میں نے پوچھا تم یہاں پہاڑ پر کیا کرتی ہو؟ کہا مسلمانوں کے فوت شدہ بچے یہیں مقیم ہو کر قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے والدین کا انتظار ہے کہ وہ آئیں تو ہم ان کی شفاعت کریں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، میں اس خواب سے سہم گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے رو رو کر توبہ کی۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا